يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ آئیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ ومن و اس کا مطلب اور، من الناس من کا مطلب فرام اور اردو میں سے، الناس لوگ، من الناس لوگوں میں سے، من یقول من یہ اصل میں لفظ من ہے، اس کا عربی کے اندر مطلب جو، یقول یا لگا ہوا ہے دوستو۔ یا کا مطلب آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، وہ ہوتا ہے ہوا کا جمع، یقول قول سے، قول کا مطلب کہنا، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا اب ایمان، آمن ایمان اور نون الف نا جب لگ جائے آخر میں تو یہ ہم کے معنوں میں آتا ہے۔ آمن اور نا یہ جو شد ہے 2 دفعہ نون کو ظاہر کرتا ہے۔ آمن ایمان اور نون الف نا دوبارہ سے، اس کا مطلب ہم۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نون الف نا جب بھی کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہم ہوتا ہے۔ من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، کس کے اوپر؟ باللہ اللہ کے اوپر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے اوپر۔ یوم دن کو کہتے ہیں، یوم ہمارے اردو کے اندر بھی پایا جاتا ہے، آخر یوم الآخر۔ وما وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہ، عربی میں ما کا مطلب نہ بھی ہوتا ہے۔ وما اور نہیں، ہم ہوا کا جمع میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور بار بار بتاتا رہوں گا، ہم جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وما ہم لیکن وہ نہیں ہیں، بمؤمنین مؤمن۔ آیت نمبر 9، یخادعون یا لگا ہے دوستو، یا کا مطلب وہ۔ اب یہ جمع کیسے ہوا؟ آپ دیکھیں واو اور نون اس لفظ کے آخر میں آ رہا ہے، وہ زیادہ ہو گیا اب دے کے معنوں میں۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، خد عربی کے اندر دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، چکما دینے کو کہتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ، یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا واو کا مطلب اور، الذین لوگ، کون سے لوگ؟ آمنوا جو ایمان لائے۔ وما واو کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں۔ یخدعون وہ دھوکہ نہیں دیتے، یخ وہ، یا وہ، اور واو اور نون نے اس کو جمع بنا دیا۔ ما یخدعون وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر، عربی کے اندر الا جب بھی آ جائے اس کا زیادہ مطلب ہوتا ہے مگر۔ انفسا انفس نفس کو کہتے ہیں، ہم جمع کا صیغہ یعنی دے، ہوا کی جمع، مگر وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انفسہم وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون واو اور ما کا مطلب نہیں، یا پھر آ گیا دوستو یش، یا آ گیا، اس کا مطلب وہ، واو اور نون آگے لگ گیا، اس کا مطلب جمع۔ وہ یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وہ خبر نہیں رکھتے۔
अब दोस्तों इसका बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। वमिनन नासी, वो लोग, मन यकूल, जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है, यानी वो ईमान नहीं रखते हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को धोखा देते हैं, वमा यखदाऊना, लेकिन वो धोखा नहीं देते हैं, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने नफ्स को, अपनी ही जानों को, अपने आप को, वमा यशऊरून, लेकिन वो इसका शऊर नहीं रखते हैं। दोस्तों, हमने लफ्जी और बामुहावरा तर्जुमा किया, लेकिन कुछ निकात ऐसे हैं जो हमें जानना इंतहाई जरूरी हैं। ये मुनाफिक जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, जिनके बारे में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये कहते तो हैं हम ईमान लाए, मगर ये ईमान नहीं लाए, तो फिर दोस्तों इनको अपने ग्रुप में से, अपनी जमात में से निकाल क्यों नहीं दिया गया, जबकि अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि ये लोग मुनाफिक हैं, तो फिर इनको निकाल बाहर क्यों नहीं किया गया। और जैसा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, इनको कत्ल कर दिया जाए, और ये वही हजरत उमर फारूक हैं जो भी बात करते हैं वो अल्लाह ताला को इंतहाई पसंद आती है। उसके बेशतर मौके हैं जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इनकी बात को पसंद किया, और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि इनको कत्ल कर दिया जाए, और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनको कत्ल क्यों नहीं करते। दोस्तों, एक बहुत बड़ी हिकमत है, और ये इख्तियार था अल्लाह ने जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दे दिया था कि अगर तुम चाहो तो इनको कत्ल कर दो, लेकिन आप क्यों कत्ल नहीं कर रहे थे। वजह यह थी कि उस वक्त इस्लाम फैल रहा था मुख्तलिफ कबाइल के अंदर, मुख्तलिफ कबीलों के लोग आकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो रहे थे। लेकिन लाजमी बात है कि वो दूसरे लोगों के पास भी तो बैठते होंगे, सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में ही तो नहीं बैठते होंगे। तो ये मुनाफिक जो थे ये वहां पर अपना हल्का हल्का वार कर रहे थे, और अगर इनको कत्ल कर दिया जाता तो इनका हुलिया तो बिल्कुल मुसलमानों जैसा था। तो फिर ये लोग कहते कि ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो अपने साथियों को ही कत्ल कर देते हैं, क्योंकि बज़ाहिर देखने में तो इनके अंदर और दूसरे मुसलमानों के अंदर फर्क ही कोई नहीं महसूस हो रहा था। यही वजह है दोस्तों, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको दरके अस्फल की जो है वो खबर दी है कि मौत के बाद मैं तुम्हें दरके अस्फल के अंदर फेंकूंगा। इंसान मुनाफिकत क्यों करता है? इंसान मुनाफिकत इस वजह से करता है कि वो अपने नफ्स को हर चीज से मुकद्दम कर लेता है। अब्दुल्ला इब्ने उबई एक बहुत बड़ी मिसाल, उसने अपने नफ्स को मुकद्दम कर लिया था, हालांकि वो जानता था कि ये जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हैं ये बिल्कुल हक हैं, लेकिन क्योंकि उसकी सरदारी के ऊपर एक बहुत बड़ी कारी ज़रब लगी थी, उसने और दूसरे सरदारों को मिलाकर और दूसरे इंपॉर्टेंट पीपल को वहां पर मिलाकर मदीने के उसने मुनाफिकत शुरू कर दी। अब वो सामने तो कुछ कहता था लेकिन पीठ पीछे कुछ कहता था, अपने वार उसके जारी थे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि बिल्कुल वही हिकमत। अब दोस्तों, अब हम अपने मुआशरे के अंदर देखते हैं, आज हम में से कितने ही लोग हैं जो कि इसी तरह रूप धार कर मुसलमानों का कलमा पढ़कर, हज करके, नमाजें बाकायदगी से पढ़कर, हम कौन सा गुनाह है जिससे हम बचे हुए हैं? कौन सी मुआशरती बुराइयां हैं जो हमारे अंदर नहीं हैं? शायद हम हज करते ही इसीलिए कि हमारे ऊपर स्टैंप लगा दी जाए, शायद हम नमाजें और लंबी लंबी दाढ़ियां
सारे नहीं, सो कॉल्ड की बात कर रहा हूं, जो मुनाफिक हैं उनकी बात कर रहा हूं। रखते ही इसलिए हैं कि लोग उनके ऊपर शक ना करें और वो अंदर से मुसलमानों को धोखा देते रहें और वार करते रहें। दोस्तों, एक काफिर तो बिल्कुल पहचाना जाता है सामने से, हम उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करते। इसलिए ये जो कुफ्फार हैं, आप यकीन करें, ये अपने कुछ लोगों को चुनकर उनको बकायदा हदीस और कुरान की तालीम देकर मुतशाबिहात की जो आयात है, जो चीजें हमारे अंदर फसाद पैदा कर सकती हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ा सकती हैं, उनको बुनियाद बनाकर ये फिर हमारे अंदर, मुसलमानों के अंदर वार करते हैं। क्योंकि इनका रूप वही होता है, हम इसलिए इनको पहचान नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा टच स्टोन है, ये आयत बहुत बड़ा टच स्टोन है दोस्तों। अगर हमने अपने किरदार और अपने कौल के अंदर यकसानियत पैदा नहीं की तो फिर जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज थोड़े से मुनाफे के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए, हिर्स के लिए हम क्या क्या नहीं कर जाते। बातें कुछ करेंगे, अमल कुछ होगा। तो दोस्तों, क्या हमें डरने की जरूरत नहीं कि ये आयत जो वईद है, जो खबर है, जो वार्निंग है, तो फिर हम खुद को जांच लें कि हम कहां पर खड़े हैं। दोस्तों, ये जो सोच होती है ना, ये एक दिमाग का अक्स होती है। जो हम बात करते हैं, ये सोच और सोच दिमाग का अक्स होती है। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे एक पानी या तो नाले में से आएगा तो गंदा होगा, या पहाड़ों के झरनों में से आएगा तो पाक होगा। जैसे हमारी सोच होगी वैसे ही हमें उसका बदला दिया जाएगा। ये मुनाफिकीन अल्लाह से नहीं डरते थे, ये मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते थे, क्योंकि हुक्म हो चुका हुआ था कि जो ईमान नहीं लाते उनके खिलाफ अब जिहाद करें। अब इन्होंने अपनी जान और माल को बचाने के लिए दोस्तों ये रूप धारा था। तो दूसरी तरफ आज हम अपने दफातर के अंदर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन लिखकर बिल्कुल उसके नीचे बैठकर हम क्या कर रहे हैं, हम करप्शन के अंदर मुलव्वस नहीं। हमें जरा सा भी अल्लाह से डर नहीं लगता। हमें लोगों से डर लगता है कि कोई एंटी करप्शन का बंदा आके हमें ना पकड़ ले। हम दुकानों के ऊपर बैठ के मिलावट कर रहे हैं और क्या मजाक नहीं उड़ा रहे हैं हदीस मुबारका का, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। हमें कोई डर नहीं किसी का, हमें डर है लोगों का। तो ये कौन सा तर्ज अमल है? आप खुद सोचिए। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने और उसको समझने की सलाहियत दे और हमें नेक रास्ते के ऊपर चलाए और मुनाफिकत से बचाए, क्योंकि मुनाफिकत की जगह दरकुल अस्फल है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي